I guess I'm on a recording mode. Hi, hello everyone. Good evening to all of you. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing really great. So there is a very urgency arise me for making this small video. So I want to explain something, some steps, some rule of this OB examination. So you can see on right before on your screen. This is a PDF which is released today, 30th December. You can see the date over here, right? Around, I guess, around 2 o'clock or 3 o'clock. I'm wondering you guys already getting this PDF, but I am getting so much queries on WhatsApp through email regarding this OB examination. So I think I should explain each and every point so that from the next whenever your exam happen, I think next exam will be happen on 17th December, and this will be your company law examination. So all the problem you face today as examination, maybe hope, just finger cross, everything will be more sorted out or everyone will be more familiar regarding these OB issues. Okay, so start करते हैं with the first point. So everyone know that in this OB examination, OB give you or Delhi University give you 3 complete hour to complete your question paper, complete the answer writing session. Okay, and plus 1 hour completely devoted or given to all of you. Just click the pictures, convert into PDF and upload on this, on the portal, Delhi University portal or OBE portal. Okay, so this 1 hour completely devoted to the uploading. Now step on the problem number 1. If in this complete 1 hour student fail to upload the OB answer script, or student face other problem, maybe his student problem, his or her internet problem, I mean student side internet was not very smooth, so this could be the another problem. So whatever problem may be, तो क्या है, in this within a 1 hour you are failed to upload the answer script. So Delhi University give you 1 hour more to upload or make an efforts to submit your OB answer script. But to use this 1 hour, what you have to do, you have to take at least 4 or 5 snapshot or screenshot that you are facing a problem while submitting the OB answer script. तो आपको snapshots रखने हैं भाई as an evidence, ये important है. आप देखोगे ये जो एक्स्ट्रा 1 आवर है, ये टेक्निकली क्या है, ये 5th आवर है. दिस इज 5th आवर, राइट? हाँ जी. सो यू by exercising or by utilizing this or by taking this extra hour, what you have to do, continuously make an attempt. You can make n number of attempt in order to submit your answer script within this 1 hour, but you have to take at least 4 or 5 snapshot as a evidence to show Delhi University that why you are completely utilized or you are worthy to take this 1 hour extra in order to submit your answer script. ठीक है, इन हिंदी, अगर 3 घंटे में आपकी आंसर राइटिंग खत्म हो गई, जैसे तैसे करके आपने कंप्लीट कर लिया पेपर, 1 जो एक्स्ट्रा आवर है आपने क्या किया, अपलोडिंग PDF बनाई और आप ट्राई कर रहे हो अपलोडिंग का, लेकिन नहीं हो पा रहा है. तो ये जो एक्स्ट्रा 1 आवर है, यानी जो 5th आवर है, ये तभी मिलेगा आपको अगर आपके पास ये प्रूफ है. आपको क्या करना है, हमेशा आपको प्रूफ लेके चलना है कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहो जब भी प्रॉब्लम आ रही है. और स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हो, आपको स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है कि टाइमिंग जो होगी ना वो शो हो हर एक स्क्रीनशॉट पे कि आपने किस टाइम पर स्क्रीनशॉट लिया है, कि वो जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू है, फेलिंग की. ओके, बाकी एक और आई थिंक नोटिस पॉइंट नोट टू बी नोटिस्ड, दिस इज द फेज नंबर 2 ऑफ OB. तो ये OB फेज 2 है. OB फेज नंबर 1 में क्या था, व्हाट्सएप यूटिलाइज करने का ऑप्शन दे दिया था, लेकिन ऑफ फेज नंबर दिस 2 ऑफ OB एग्जामिनेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली एलिमिनेट दी सबमिशन वाया व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप का ऑप्शन इस वक्त तो नहीं है हम लोगों के पास, सिर्फ 2 ऑप्शन है. फर्स्ट इज
सबमिशन थ्रू पोर्टल एंड सेकेंड इज सबमिशन थ्रू ईमेल आईडी। और वो आप कब कर सकते हैं उसका भी स्टैंडर्ड है, आगे पढ़ते हैं पता चल जाएगा आप लोगों को। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू कैन सी हियर, हाँ जी, इफ द स्टूडेंट फेल टू सबमिट द स्क्रिप्ट विद इन द पीरियड ऑफ 3+1+1 यानी इस एक्स्ट्रा आवर, इस आवर में भी यू आर कम्प्लीटली फेल। देखो ऐसा है, ये जो एक्स्ट्रा 1 आवर, इफ़ यू गेटिंग दिस एक्स्ट्रा 1 आवर यू आर ट्राइंग टू सबमिट योर OB आंसर स्क्रिप्ट, अगर वो सबमिट हो गई तो वेल एंड गुड, बट स्टिल आपको 4-5 स्नैपशॉट्स एज एन एविडेंस वो भी सबमिट करने पड़ेंगे। वो ऑप्शन आ जाएगा कहाँ सबमिट करना है, मेल करने हैं, वो सरदर्दी लाइक कॉलेज वालों की है, वो किसके थ्रू आपके एविडेंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यू हैव टू टेक अ एविडेंस फ्रॉम योर ऑन साइड। ओके, अब क्या हुआ प्रॉब्लम, इस 1 एक्स्ट्रा आवर में भी, ये जो 5th कंप्लीट आवर है उसमें भी ना यू आर फेल टू सबमिट योर OB एग्जामिनेशन। तब क्या होगा, ओनली देन यू कैन यूज आफ्टर 5 आवर you can use email option. Okay, after completing 5 hour you can utilize this email option. तो email option आप कब utilize कर सकते हो, जब आप 5 घंटे complete हो चुके हैं तब, पहली चीज़। प्लस when you are submitting your OBE answer script while using or exercising this email ID option, you have to submit the 4-5 fail snapshot as an evidence. जब आप ईमेल आईडी ऑप्शन 5 घंटे हो गए हैं, ठीक है, आप नहीं सबमिट कर पा रहे पोर्टल के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप ईमेल आईडी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और ईमेल आईडी जब आप अपलोड करोगे, ईमेल आईडी यूज़ करके आप जब OBE अपलोड करोगे, मेल करोगे, तो आपको एविडेंस भी उनके साथ अटैच करना है भाई। 4 to 5 स्नैपशॉट आपको प्रूफ ऐसे शो करने हैं कि 5 घंटे में आप ईमेल ऑप्शन क्यों यूज़ कर रहे हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आप बिफोर और विद इन अ 5 आवर, इन दिस 1 आवर जो आपको एक्स्ट्रा मिला है वापस से पोर्टल पे ट्राई करने का, और अगर यहाँ पर भी आप सोचते हो कि हो तो है रहा नहीं है, ईमेल ऑप्शन ही यूज़ कर लेती हूँ, यानी बिफोर 1 आवर इफ़ यू यूटिलाइज और सबमिट योर OBE आंसर स्क्रिप्ट थ्रू दिस ईमेल ID, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट योर OBE आंसर स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है 5 घंटे से पहले आप ईमेल ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते। 5 घंटे से पहले अगर आप ईमेल ऑप्शन यूज़ करते हो तो आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है, क्या बोलते हैं हिंदी में, एलिमिनेट को, रद्द मानी जाएगी वो, ठीक है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो ऐसे कंसिडर किया जाएगा आपने एग्जाम ही नहीं दिया। तो ईमेल ऑप्शन की कंडीशन यही है, 5 घंटे के बाद आप ईमेल ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन ये है, सपोज 5 आवर्स टोटली कंप्लीटेड within a 10 minute, so within 10 मिनट्स के अंदर आपको ईमेल करना है। 10 मिनट के अंदर फटाफट ईमेल कर दो। 10 मिनट इसलिए दिए गए हैं क्योंकि 5 घंटे आपको ऑलरेडी डेली, लाइक वी आर सपोजिंग कि आपने PDF एवरीथिंग इज जस्ट रेडी, प्रॉब्लम सिर्फ अपलोडिंग में आ रही है, तो सिर्फ 10 मिनट है। 5 घंटे के बाद आपको 10 मिनट्स के अंदर यू कैन जस्ट ग्लेंस थ्रू इट। वेयर इज माई पेन, हियर इट, यू कैन सी इट। 10 मिनट, विद इन अ 10 मिनट यू हैव टू सबमिट योर मेल योर आंसर शीट। ओके, तो 10 मिनट्स के अंदर आपको आंसर शीट मेल करनी है, और ईमेल ऑप्शन 5 घंटे से पहले नहीं कर सकते। 5 घंटे के बाद 10 मिनट में आपको ईमेल करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द आंसर शीट विल बी अपलोडेड शैल बी अफेक्टेड बाय अफेक्टेड स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि जब आप नोडल एजेंसी को अप्रोच कर ईमेल ऑप्शन यूज़ कर रहे हो, तो ईमेल ऑप्शन सब लोगों के लिए नहीं अवेलेबल, ये उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो तभी आप अपने जब भी आप ईमेल करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन योर ईमेल वाइल गिविंग दी और सबमिटिंग और मेलिंग your OBE answer script to this Delhi University department, then you must write it down और mention your name, paper code और roll number। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट यहीं पर ही नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बोल रही थी कि आपको अपना नेम, रोल नंबर, जस्ट मेक श्योर यू हैव राइट इट डाउन योर name, roll number, subject name, each and every answer sheet. Suppose for example, for instance, you start writing of your first answer, okay, and your first answer taking a complete 3 sheet to cover it up, okay, तो पहले आंसर ने 3 शीट आराम से ले ली to complete you are taking a complete 3 sheet to complete your first answer. So sheet number 1 you have to write it down, answer number 1,
okay, name, roll number. Sheet number 2, answer number 1, continue, name, roll number, subject name. Sheet number 3, answer number 1, name, roll number and subject name. Again I'm saying again and again on a repeatedly mode that you have to mention your क्वेश्चन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड रोल नंबर, ईच एंड एवरी आंसर शीट, और आपको साइन भी हर एक आंसर शीट पे करने हैं आपने, ठीक है। तो जब आप मेल करोगे तो डिस्क्रिप्शन पे अपना नाम, पेपर कोड, कॉलेज का नाम, सारी डिटेल्स, जस्ट राइट इट डाउन, फुल क्रेडेंशियल ऑफ योर्स, सिर्फ इतना ही नहीं और कुछ, जैसे कि सब्जेक्ट का नेम, कॉलेज का नेम, एनसी वेब के सेंटर का नेम, एवरीथिंग, जस्ट राइट इट डाउन। ईमेल ऑप्शन सेंड बाय स्टूडेंट प्रायर टू द, ये मैंने बता चुकी हूँ आपको कि 5 घंटे से पहले अगर आप ईमेल ऑप्शन यूज़ करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओके, वो रद्द माना जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी विल नॉट एक्सेप्ट दोज रिस्पॉन्सेज, और वो फिर 5 घंटे के बाद आपको दोबारा से ही 10 मिनट के अंदर अंदर दोबारा मेल करना पड़ेगा। और जब आप मेल करोगे तो आपको एज एन प्रूफ 4-5 स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट आपको अटैच करने हैं। और जब भी आप अगर आपका 4 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है, लाइक 3 आवर, तो आंसर राइटिंग में 1 आवर के अंदर आप सक्सेसफुली अपलोड कर पाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 आवर, इससे 5 घंटे से पहले जो 5th आवर मिला है ना हमें, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, देखो इस आवर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये जो एक्स्ट्रा आवर मिला है एक्स्ट्रा, तो ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप उनको एविडेंस दिखाओगे, ये स्नैपशॉट के 4-5 फेल स्क्रीनशॉट ऑफ योर मोबाइल फोन। जस्ट मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले रहे हो कि जस्ट टाइमिंग, थोड़ा सा टाइमिंग में, चाहे वो सेकेंड में क्यों ना, बट डिफरेंस हो। आंसर स्क्रिप्ट सबमिटेड थ्रू ईमेल आईडी इज अ एक्सेप्शनल केसेस। देखो ये इसका मतलब ये है कि जब ईमेल आईडी से आप आंसर सबमिट कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस कंसीडर इसलिए किया जाएगा, तो उनका जो रिजल्ट है ना वो भी ना जो विल बी रिलीज लेट, okay, those student who submit their OBE examination through email ID, that might be possible, result of those student can take some more time as compared to those who submit through the portal, okay। तो अगर आप पोर्टल के थ्रू सबमिट करते हो तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन ईमेल आईडी के थ्रू सबमिट करते हो थोड़ा सा लेट रिजल्ट आ सकता है आपका, वो अलग से इवेलुएट किया जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है PWD स्टूडेंट्स के लिए है। PWD स्टूडेंट हैव टू गिव द ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी, ओके। तो PWD दो स्टूडेंट हु कम अंडर दिस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, तो उनके लिए एक अलग से ईमेल आईडी है। उन स्टूडेंट्स को आंसर स्क्रिप्ट नोडल ऑफिसर्स के थ्रू नहीं करना है। ये नोडल ऑफिसर क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं भाई। नोडल ऑफिसर्स कुछ नहीं होता, 3 और दिल्ली यूनिवर्सिटी जस्ट गिव द नोटिस, गिव द what we call notification or specifically in this OBE time that each and every colleges must be participate, okay, in this OBE management system। और हर एक कॉलेज से 2 से 3 जो मैनेजमेंट के लोग होंगे वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे, जिनको नोडल ऑफिसर यहाँ पर बोला गया है। यानी हर एक कॉलेज से 2 या 3 लोग, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आप उन लोगों को अप्रोच कर पाओ, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉलेजेस, उनको नोडल एजेंसी बोला गया है। अब हम ईमेल आईडी की कुछ बात कर लेते हैं जो मुझे अभी डिस्कस करनी है। देखो ईमेल आईडी ना आपको कैसे पता चलेगी, आपको इन नोडल ऑफिसर्स यानी इन हर एक कॉलेज की किसी एडमिन को कॉल करना है, जो आपके नंबर उस वक्त आराम से पता चल जाएगा किसे कॉल करना है किसे नहीं कॉल करना। आपको कॉल करना है, उनको बोलना है कि भाई आपके 5 आवर कंप्लीट हो गए हैं, आपको ईमेल ऑप्शन यूज़ करना है। लेकिन आप जस्ट आस्क देम कि आपको कौन सी ईमेल आईडी पर अपनी OBE और स्क्रीनशॉट है वो सबमिट करने हैं, ओके। सो ईमेल आईडी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच एग्जाम टू एग्जाम, ओके। सो ईमेल आईडी अलग हो सकती है, एग्जाम से एग्जाम टू एग्जाम अलग ईमेल आईडी आपको मिल सकती है सबमिट होने के लिए। तो वो आपको एग्जाम हर एक एग्जाम में जो भी नंबर दिया जाएगा क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए एडमिन ऑफिसर्स का, तो किसी भी मेंबर का, तो उनको कॉल करके पूछना है। और ऐसे नहीं सोचना कि आपने फर्स्ट एग्जाम में ये वाली ईमेल आईडी यूज़ करी थी, आज सपोज आज जैसे कंपनी साइबर लॉ का एग्जाम था, राइट। तो आज अगर किसी ने ईमेल आईडी के थ्रू कोई एग्जाम सबमिट किया है, आज का अगर यूज़ भी किया है ऑप्शन, तो आज तो हो गया जो हो गया, लेकिन आगे से ईमेल आईडी का ऑप्शन तभी आप यूज़ कर सकते हो अगर पूरे 5 घंटे हो चुके हैं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट मेल कर दो। और ईमेल आईडी के लिए आपको किस ईमेल आईडी पे सबमिट करना है आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट हो सकती है। तो मेक श्योर जब भी आप हर एक सब्जेक्ट के टाइम पर आप पहली वाली ईमेल आईडी यूज़ नहीं करोगे। तो ईमेल आईडी आप सब डिफरेंट हो सकती है। आपको पता कैसे चलेगी, वो आपको फ़ोन करके पता चलेगी। जो भी किसी भी मैनेजमेंट का क्वेरी से रिलेटेड नंबर दे रखा होगा, जस्ट कॉल देम अप,
Okay, they surely resolve your queries. Or anything else, I think from my side I discuss each and every point. Or WhatsApp, you cannot utilize this WhatsApp option in this phase number second of OBE एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर सिर्फ ये चेंजेस हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ आई थिंक बनाने की कोशिश की गई है, बट कितना स्मूथ होगा वो तो आप लोगों के एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा. वेल आई गेस दैट्स इट. आई वॉन्ट टू डिस्कस दीज पॉइंट्स. Still anything is left or other query you are facing, or some other queries still not resolved, then do comment in the comment section. So I'll upload this video soon. Okay, thank you so much. Have a nice time.